الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، پہلے تو میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ خاموشی بنائے رکھیں، اور بہن نے تقاضا کیا تھا کہ آواز جاری علم پہ کچھ بولنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی آسان انداز میں کچھ باتیں رکھ سکوں آپ لوگوں کے سامنے. علم وہ چیز ہے، علم ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے، زینہ ہے، جس کے ذریعہ پوری قوم ترقی کرتی ہے، سماج ترقی کرتا ہے، معاشرہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے علم کی وجہ سے. انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، کبھی بھی علم سے ترقی کرتا ہے، اور پورا سماج اگر ترقی کرتا ہے تو علم کی وجہ سے. یہ علم ہی ہے جو انسان کو عزت کی بلندی پہ لے جاتی ہے، عزت اور رفعت عطا کرتی ہے. ایک جگہ ہے، ایک مجلس ہے جہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک عالم ہے، اس میں ایک مفتی ہے. 10 لوگ بیٹھے ہیں، 100 بیٹھے ہیں، 1000 بیٹھے ہیں. اگر اس میں عالم دین ہے، اگر مفتی ہے، تو لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقائق کی روشنی میں لوگوں سے بیان کرتا ہے، دلائل کی روشنی میں لوگوں سے بات کرتا ہے، تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں. اگر عالم ہے، وکیل ہے، اگر جج ہے، اگر لائر ہے، اگر ڈاکٹر ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہو، عالم ہے، نالج ہے، جانکاری ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. علم کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کی. اسلام میں جتنی تاکید آئی ہے اس علم کی، اور جتنا زور ڈالا گیا علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں، دھیان سے سنیے، کسی بھی مذہب میں علم کی اتنا زور نہیں ڈالا گیا. میری بہن نے ابھی بتایا تھا کہ سب سے پہلی سورت کون سی سورہ ہے؟ سورہ علق. سورہ علق کی 5 آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اقرا، پڑھو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو. توحید کے عقائد نہیں بتائے گئے، خاموشی بنائے رکھے. تو سب سے زیادہ تاکید جو اسلام میں ڈالی گئی وہ کیا ہے؟ علم ہے، علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، کیا وہ لوگ جن کے پاس جانکاری ہے، نالج ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جن کو نالج نہیں ہے، جن کو جانکاری نہیں ہے؟ اور یہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو جانکاری ہے وہ اور جن کو جانکاری نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. عالم کی فضیلت، جو علم حاصل کیا ہوا ہے، جس نے سیکھا ہے کچھ، اس کی فضیلت ایک عابد پہ ویسے ہی ہے جیسا کہ چاند نمایاں نظر آتا ہے ستاروں میں. جیسا کہ چاند کی فضیلت ہے ستاروں میں، تو چاند جیسے الگ سی اس کی چمک ہے، نمایاں ہے، بڑا نظر آتا ہے، روشن نظر آتا ہے، ویسے ہی عالم جو ہے کسی مجلس میں نظر آتا ہے. کسی مجلس میں جو عالم ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی متوجہ ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، گرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے
जैसे कि मेरी फजीलत है तुम में से आम सहाबी को। समझ में आ रही बात? अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान था कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, उसकी तशरीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हो रही है। क्योंकि एक आलिम 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो वो खुशू, हुजू, अरकान, वाजिबात, शराइत तमाम को सामने रख कर करेगा। और एक जो आबिद है, इबादत गुज़ार है, वो 100 रकात पढ़ेगा लेकिन उसके अंदर वो खुशू नहीं होगी जो एक आलिम की नमाज में होगी। इसको आप समझ लीजिए, आप लोग सब ख्वातीन हैं, आप समझिए घरेलू मिसाल से आप हलवा बनाती हैं, ठीक है, हलवा बनाती हैं, बहुत सारा बनाएं, उसमें घी ना डालें, उसमें खोया ना डालें, तो उसका टेस्ट देखिए और एक थोड़ा सा दे किसी मेहमान को और घी वाला हो, खोया डाला हुआ हो, तो कितना फर्क होता है। वैसे ही है एक आलिम की इबादत और एक आबिद की इबादत। समझ में आ रही है बात? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरते हैं उलमा। अल्लाह के बंदों में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा खशियत इख्तियार करते हैं, डरते हैं। कौन लोग? वो लोग जो आलिम हैं। क्यों? इसलिए कि उनको अल्लाह की ज्यादा मारिफत होती है, वो अल्लाह को ज्यादा जानते हैं। तो जितना जानेंगे लोग उतनी इज्जत करते हैं, उतनी उनके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, ठीक है। और जो अल्लाह ताला से अल्लाह को उतनी नहीं जानते, अल्लाह की मारिफत नहीं है, तो उतनी उसके दिल में ना अल्लाह की खशियत है और ना अपना डर है। और ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारा रब है, ना ये मेरी बात है, ना आपकी बात है, ना किसी और इंसान की बात है। ये किसकी बात है? ये अल्लाह ताला की बात है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फर्ज करार दिया है। क्या करार दिया है? ये हम उम्मते मुस्लिमा पे इल्म हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम और मुस्लिमा पे फर्ज है। अब आप थोड़ा पीछे जाएं और ज़माना जाहिलियत को देखें। वो ज़माना जाहिलियत कहलाता है जब इस्लाम नहीं आया, वो ज़माना जाहिलियत कहलाता है। वहाँ ना कोई उमर फारूक थे, ना कोई अबू बकर सिद्दीक था, ना कोई अली हैदर थे और ना कोई उस्मान गनी, है ना। लेकिन जब इस्लाम आया, इल्म आया। इस्लाम कहते किसे हैं? इस्लाम इल्म का नाम है। इस्लाम हमारे दिलों में तभी जागृति होगा, हम मुसलमान तभी होंगे जब हम सीखेंगे, जब हमें इस्लामी मालूमात हासिल होगी। तो जब इस्लाम आया तो वही सहाबा कराम जिनको कोई नहीं जानता था, न समाज जानता था, न मुआशरा जानता था, न इर्द गिर्द के लोग जानते थे, जब उन्होंने सीखा, उन्होंने अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया, वो दुनिया में भी सुकून से जिए और आखिरत में तो उनको कामयाबी मिली। लोगों की नजरें उठने लगी, अच्छा ये है और ये बोलियां नशीन और ये बद्दू लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन इस्लाम आया, उन्होंने सीखा, उन्होंने अपना वक्त दिया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, बारी मुतय्यन कर रखी थी सहाबा कराम ने, तिजारत छोड़ दी थी इल्म हासिल करने के लिए। कभी एक सहाबी जाते थे और दूसरा जो उनका दोस्त होता था, उनका रफीक, उनका पड़ोसी होता था, वो तिजारत के लिए जाते थे, फिर घर आते थे। ये जो दिन भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे उनको सिखाते थे, तो ये तड़प थी उनके अंदर। उसके बाद हमारे ताबीन निज़ाम हुए, असलाफ हुए, उन्होंने इल्म सीखा, खुद सीखा और इल्म के वो मस्दर, वो सरचश्मा हो गए कि पूरी दुनिया ने उनसे सीखा। समझिए इस बात को, पूरी दुनिया ने सीखा उसको, इल्म को, उन लोगों से। समझ रहे? बगदाद की लाइब्रेरी थी, तो मुख्तलिफ इलाके से, मुख्तलिफ ममालिक से किताबें उसमें ट्रांसलेट करके रखी गई। तो सहाबा कराम ने सीखा, और सहाबा कराम वो थे जिनका रिश्ता अल्लाह ताला से भी बहुत मजबूत था, क्योंकि इस मैदान में वो बहुत आगे थे। तो अल्लाह ताला से भी रिश्ता मजबूत था और दुनिया में भी वो कामयाब थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन की नॉलेज थी उनके पास, समझ रहे हैं, दुनिया की भी नॉलेज थी। दुनिया के जितने भी इजादात है,
इख्तराआत है, जितने आलात है, उनके पास थी। उस जमाने में कैसरोल उनके पास नहीं थी वो चीजें किसके पास थी? हमारे सहाबा किराम के पास थी। अब हम अपने दौर को देखें, आज हम हिंदुस्तान को देखें हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को देखें, इन्हीं मैदान में कितने पीछे हैं। हमारी जिल्लत, हमारी पछताई, हम देख रहे हैं इसको। मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं है समाज में, सोसाइटी में मुसलमानों का कोई नाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम हर मैदान में पीछे हैं, चाहे वो दुनियावी उलूम, चाहे वो दीनी उलूम, बिल्कुल पीछे हैं। वो कौम जिसमें इल्म को फर्ज करार दिया गया, उस कौम की ये हालत है। आप किसी भी गली से गुजरे, दूर नहीं, यहाँ दिल्ली जो हमारी राजधानी है, किसी भी गली से गुजरे, बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, समझ में नहीं आता ये हमारे नौजवान बच्चे हैं, ये हमारे छोटे बच्चे हैं जिन पे हमारे मुस्तकबिल, हमारे फ्यूचर का इंतजार, जो हमारे कल के चेहरे हैं, ये हमारे बच्चे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और हमारी बच्चियां, कुछ ने इल्म सिखाई, तो कैसे इल्म सिखाई? तरक्की के नाम पे, ध्यान से सुने मेरी बात, तरक्की के नाम पे हमने भेज दिया अपने बच्चों को गैर इस्लामी लिबास बनाकर इंसानी भेड़ियों के पास, है ना, इंसानी भेड़ियों के पास भेज दिया। उन्होंने हमारे बच्चियों को खा लिया। अब हम अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या यही तरक्की हमें चाहिए थी? क्या हमें यही तरक्की चाहिए थी? हमें चाहिए था कि सुकून के साथ रहें अपने घरों में, खाना खाएं, रब की इबादत करें, ये चाहिए था ना। आ रही समझ में? अभी बहुत पेपर में आ रहा है आजकल लड़की के बारे में, है ना। तो क्यों? इसलिए कि हमने तरक्की के नाम पे गैर मुस्लिमों की तकलीफ में चूंकि हमने इस्लाम को समझा नहीं, जाना नहीं हमने इस्लाम से, हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं है। अब देखिए पेपर में हर दिन आ रहा है, आजकल तो बहुत बढ़ गया है कि लड़कियां जो हैं लड़कों से शादी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इसलिए कि हम माओ ने, हम वालिदैन ने बच्चियों के दिलों में ईमान की मोहब्बत नहीं डाली, कुफ्र से नफरत नहीं डाली हमने। हमारे दिलों में है वो मोहब्बत, हमारे दिल में कुफ्र से नफरत है कि हम बच्चों के दिलों में डाल सके। हमारे सहाबा किराम कैसे थे? सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल और उनके साथी, और मोहम्मद के साथी कैसे हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पे सख्त हैं, व रुहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत करने वाले, आपस में रहीम हैं। तो मोहम्मद कैसे हैं और उनके साथी कैसे हैं? वो कुफ्र से नफरत करते हैं, क्योंकि कुफ्र क्या है? अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बातें हैं, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानना है, अल्लाह की बात को नहीं मानना कुफ्र है। और मोहम्मद उनके साथी और मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो मोहम्मद की उम्मत है। तो मोहम्मद की उम्मत होनी कैसी चाहिए? मोहम्मद की उम्मत वो होनी चाहिए जिनको कुफ्र से नफरत होनी चाहिए, ईमान से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे दिलों में ईमान से मोहब्बत है? क्या हमने अपने बच्चों के दिलों में वो मोहब्बत डाली है? क्यों जाते हैं बच्चे या बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादी करने, जिनसे करना हराम है इस्लाम में? और बहुत सारी चीजें रोजमर्रा में हम देखें, बर्थडे मनाना क्यों मनाते हैं? क्यों हमें दूसरे की तहजीब, दूसरों का दीन अच्छा लगता है? उसकी जगह पे बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं आपकी क्लास में, पास हो रहे हैं, उसको आप सेलिब्रेट करें, समझ में आ रही है? उसको सेलिब्रेट करें, क्यों नहीं करते? तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम को सीखें। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जो हमारा रब है, जिस रब को हम पूछते हैं, उस रब के बारे में नहीं जानते कि वो रब कहाँ रहता है, उस रब की सिफात क्या है। हम खुद को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम के अरकान क्या है? ईमान के अरकान क्या है? आखिरत के ताल्लुक से बुनियादी अकायद क्या है? ये हमें मालूम नहीं है। क्यों हमने अपने असलाफ की तालीम को भुला दिया? अगर हम तरक्की चाहते हैं, अगर हम इस हालत से उभरना चाहते हैं
जिस हालत में आज मुसलमान जी रहे हैं, तो हम सबको जो यहाँ बैठे हैं अहद करना होगा कि हम इल्म हासिल करें, अल्लाह का दीन हासिल करें और गहराई के साथ हासिल करें। उसके लिए वक्त निकालें। बात समझ में आ रही है? सिर्फ जज्बाती बातों से नहीं होगा, सिर्फ जज्बात में आ गया, रो में बह गए, एक इरादा कर लिया, हो गया, नहीं। पुख्ता इरादा करना होगा, वक्त निकालना होगा, देखना होगा हमारे सहाबा किराम ने कैसे वक्त निकाला था। ठीक है, बात समझ में? तो वैसे निकालना होगा। आज जो आपके शौहर हजरात हैं जो बाहर जाते हैं, तो बीवियां घर में होती हैं, तो बीवियां जाएं 2-3 घंटा, ये मौका मिला है। और बहुत सी जगहें हैं जहाँ इस्लामी तालीमात हो रही हैं सही अकायद की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में, वहाँ पे जाएं, कुरान सीखें, किताब व सुन्नत सीखें, और ये जो आपके मासूम बच्चे हैं उनको सिखाएं। मुआशरा जो है इस्लाह हो सकता है, कौम बदल सकती है पूरी, और हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी बदल सकती है, और हम भी तरक्की कर सकते हैं अगर हम सब इरादा करें। अल-उम्म मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत शाबन तय्यबल आराक़ी। माँ मदरसा है, माँ क्या है? मदरसा है। अगर तुम उसको तैयार करो तो आप वो माएँ हैं जो बड़ी हो चुकी हैं, समझदार हो चुकी हैं, आपके पास इतनी अकल है कि अब इल्म हासिल कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, आप कहिए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, दुआ कीजिए। तो सिर्फ इल्म हासिल नहीं करना है, इजाफा करना है उसके लिए, और दुआ भी करनी है। ठीक है, जिन्होंने हासिल किया है उनको मज़ीद से मज़ीद हासिल करनी है, और उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हम में से 20 लोग उठ जाएं, 100 लोग उठ जाएं, 50 लोग उठ जाएं, और ये तहैया कर लें कि हमें इल्म हासिल करना है, दीन सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है, अपनी सोसाइटी, अपने समाज को सिखाना है, तो पूरा मुआशरा बदल सकता है। पूरी सोसाइटी जो मुसलमानों की सोसाइटी है, मुसलमानों का कोई चेहरा, कोई फेस नहीं है, बल्कि मुसलमान ज़लील, क्या कहते हैं उसको, मरऊब कौम है, ज़िल्लत में जी रही है मुसलमान। तो अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, अगर हम चाहते हैं कि हम फिर उभर के आए, तो हमें अपने रब से जुड़ना होगा, और रब से जुड़ने के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। आप इस्लाम के किसी अहकाम पे अमल नहीं कर सकते जब तक आपको इल्म न हो। इस्लाम के किसी भी अहकाम पे इल्म करने अमल करने के लिए इल्म ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और कि दुनियावी उलूम भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन दुनियावी उलूम उस तरह से हासिल करना है जैसे हमारे रब ने सिखाया है। हम अपने बच्चों को बच्चियों को पर्दों के साथ सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं निगाहें नीची रखना। ठीक है, तो ये चीज़ एक मुस्लिम सोसाइटी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबा किराम कितने थे? बहुत थोड़े थे, बहुत कम मुद्दत थी, 23 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी थी? 23 साल। कौन सी ज़िंदगी? नबूवत वाली ज़िंदगी। 23 साल की मुद्दत में इस्लाम फैला, उसके बाद सहाबा किराम निकला है, तो बहुत कम मुद्दत थी। आप लोग अगर इरादा करें तो हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का भी वादा है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, कामयाबी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मुकद्दर है कामयाबी, अगर तुम मोमिन हो। और मोमिन हम कब होंगे? जब हम इल्म सीखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इल्मी मैदान में आगे और आगे जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि दुनिया में सुकून से जीने के लिए हम दुनियावी उलूम भी सीखें, और अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करने के लिए दीनी इल्म सीखें, और हमारी माएँ, हमारी बहनें अपनी जिम्मेदारी को समझें, इल्म हासिल करें। जब उनके शौहर घर पे आए तो शौहर को सिखाएं। आमीन तुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम।